नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निराकार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान યોગીન્દ્ર દેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગાથા 117નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। 117મી ગાથા બીજા અધિકારની ગાથા 117 અને સળંગ ગાથા 247। એ ગાથાનો અન્વયાર્થ ભાવાર્થ અને એ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામી આપેલ પ્રવચનનો કેટલોક ભાગ કર્યો છે, શેષ ભાગ આજે લઈએ। તે પછીથી ગાથા 118નો સ્વાધ્યાય આપણે કરીએ છીએ। ગુરુદેવ જે 118મી ગાથા ઉપર વિસ્તાર કર્યો છે તે પણ આપણે આજે લઈશું। તો પહેલા આપણે 118મી ગાથા લઈએ છીએ। 118મી ગાथाना उद्गात में कहे छे कि आगे मोक्ष का कारण वैराग्य को दृढ़ करते हैं। गाथा 118 मोक्ष एव साधित जिनवरे त्यक्त्वा बहुविधं राज्यं भिक्षा भोजन जीवत्वं करोषि न आत्मीयं कार्यम्। 118મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે कि जिनवरे बहुविधं राज्यं त्यक्त्वा मोक्ष एव साधितो। जिनेश्वर देव ने अनेक प्रकार का राज्य का विभव छोड़कर मोक्ष को ही साधन किया, परंतु जीव भिक्षा भोजनत्वम् आत्मीयम कार्यम न करोषि। ये जीव भिक्षा से भोजन करने वाला तू अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं करता। सुखे छे कि जिनेश्वर देव ने अनेक प्रकार का राज्य का विभव छोड़कर मोक्ष को ही साधन किया, परंतु हे जीव भिक्षा से भोजन करने वाला तू अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं करता। गुजराती में गाथा है मोक्ष ज साध्यो जिनवरे तजीने बहुविध राज भिक्षा भोगी जीव तू करे न क्यम निज काज। दिनेश्वर भगवाने तो राजपाट બધું છોડી દઈને ત્યાગીને માત્ર મોક્ષની સાધના કરી, મુક્તિની સાધના કરી। તું યોગી ભલે બધું છોડીને ભિક્ષા દ્વારા ભોજન કરે છે, છતાં પણ તું તારું કાર્ય કેમ કરતો નથી? એટલે કે આવું મોક્ષ માર્ગનું ઉત્તમ કાર્ય કેમ કરતો નથી, એવો કહેવાનો આશય છે। અર્થમાં કહે છે કે અનેક પ્રકારના રાજ્ય વૈભવને છોડીને જીનવરોએ મોક્ષની સાધના કરી છે। એ જીવ તું તો ભિક્ષાથી ભોજન કરનાર એવો છતાં પોતાનું કાર્ય કેમ કરતો નથી? અર્થાત રત્નત્રયને યથાર્થપણે પ્રાપ્ત કરીને બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિગ્રહને તજી દઈ વિતરાગ પરમ સમાધિમાં સ્થિત થઈ સર્વ પ્રકારે સર્વશ્રેય રૂપ આત્મકાર્ય સાધવામાં તત્પર થવું યોગ્ય છે। બહુ સરસ ગાથા છે, ઉપદેશાત્મક કથન છે, પરંતુ મૂળ વાત કરી દીધી છે। મોક્ષ માર્ગને સાધવાની વાત કરી છે। ગમે તે બીજા ઉપાય કરીએ, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરીએ, બીજા અનેક પ્રકારે વ્રત તપ કરીએ, પણ રત્નત્રયને યથાર્થપણે પ્રાપ્ત કરવા
રત્નત્રય પ્રગટ કરવાના છે. નિશ્ચય રત્નત્રય, નિશ્ચય સમ્યક દર્શન, નિશ્ચય સમ્યક જ્ઞાન, નિશ્ચય સમ્યક ચારિત્ર. એ પ્રગટ કરવા માટે બાહ્ય અને અભ્યંતર સર્વ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. 10 પ્રકારના બાહ્ય પરિગ્રહ અને 14 પ્રકારના અભ્યંતર પરિગ્રહને તજી દઈને વિતરાગ ભાવે જ્યારે પોતે પરિણમે છે, નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં સ્થિત થાય છે, તો પોતાની સર્વ શ્રેય રૂપ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે, આત્માની અનુભૂતિ થાય છે, આત્મકાર્ય થાય છે, અને એ જ કરવું જોઈએ. તો એ રીતે આ 118મી ગાથા છે. આપણે અત્યારે 117મી ગાથા ચાલે છે. એનું કંઈક પુનરાવર્તન કરીએ જેથી અનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય. 117મી ગાથામાં એ જ રીતે વાત આવી છે કે જે પુરુષો યુવાવસ્થા રૂપી ગ્રહમાં સરોવરમાં પડેલા છતાં ડૂબતા નથી, પણ લીલા માત્રમાં તેને તરી જાય છે, તેઓને ધન્ય છે. તેઓ સત્પુરુષ છે તથા તેઓ જ આ લોકમાં ચિરકાલ જીવંત રહો, જયવંત રહો. આ સંસાર સાગરને જે તરી જાય છે, ભલે ને યુવાવસ્થામાં હોય તો પણ એ ધન્ય છે. તો આપણે 117મી ગાથા ઉપર બાકી રહેલ વાત ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 6 વર્તુળ, એના પાના નંબર 382. પરમાત્મા પ્રકાશ 117નો ભાવાર્થ છે. 116માં થોડું રહી ગયું ટીકાનું. 116 છે ને, ટીકાનો અર્થ થોડો એમાં નથી કર્યો. भावार्थ 116 भावार्थ, जैसे चिकनाई तेल के संबंध होने से तिल घानी में पेरे जाते हैं, तल में तेल चिकास है, वो कारण तल को पीलना पड़ते हैं. तल है ना, तल तिल, उसमें चिकास है ना, तेल, वो कारण तल को पीसने आते हैं, है ने. પછી થોડો શબ્દ સંસ્કૃતમાં છે, અર્થમાં નથી કર્યો. વિતરાગ चिदानंद एक स्वभाव परमात्मा तत्व असेवमाना पसंदीदा विषय में रस ने प्रेम क्यों है, उसको एम कहते हैं कि अपना आत्मा वितराग चिदानंद एक स्वभाव, સંસ્કૃતમાં છે, અર્થમાં નથી. પરમાત્મા તત્વ સ્વભાવ અસેવમાના, वितराग चिदानंद एक स्वभाव परमात्मा तत्व अपना. ये तत्व न असेव माना, ऐसा तत्व को न सेवते हुए अजानतो न जानते थके, वितराग निर्विकल्प समाधि बलेन आने न जानतो न सेवतो, वितराग निर्विकल्प समाधि बलेन निचल चेतन अभावेन तो राग रहित अंतर निर्विकल्प शांति समाधि एने न भाव तो अपनी भावना अंतर में नहीं करते. ये जीव मिथ्या मार्ग रोच माना पचेंद्र विषयासक्त असंतोष, જેને ભગવાન નિજાનંદ વિતરાગ પરમાત્મા અને એની અસેવના, એની સેવના નહીં, પ્રભુ ભગવાનમાં એકાગ્રતા નહીં, અને અજાણતો વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ બળે, રાગ રહિત વિતરાગ પરિણતિ की शांति बढ़े, निश्चल चितेन अभावेन तो निश्चल चित કરીને आत्मा की भावना करते नहीं. समझ में आया?
એ જીવ પચેન્દ્રીના વિષયના ગદ્દી થઈને રાગની ગદ્દીની ચીકણાઈમાં चार गति में परिभ्रमण करते हैं एम कहते हैं। समझ में आया? ये टीका अर्थ नहीं रही गयो। હવે સત્વનો ભાવાર્થ यहाँ सत्वનો भावार्थ यही विषय वंशारूप में जाओ अपना आनंद स्वभाव की भावना रहित अज्ञानी विषय वांछारूप स्नेह जो चिकास रूपी जो उसके प्रवेश में रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अमूल्य रत्नों से भरा एक अमूल्य शब्द पड़ा रहा है। अमूल्य शब्द जी है, अमूल्य शब्द रह गया है, टीका में अमूल्य है। विषय वंशारूप जो स्नेह जो परमा विषयना प्रेमना जलमा भींजाई गयो अज्ञानी। समझ में आया? उससे प्रवेश में रहित ऐसा प्रवेश रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञानचारी रूपी अमूल रत्नों से भरा निःशुद्धात्मा भावना रूपी जहाज। शास्त्रीय भाषा तो जो उससे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को तेज जाते हैं। यौवन अवस्था 25, 30, 40 उम्र जवान फूट रही अवस्था शरीर कोमल, अरे ये समय तो मांस में हड़का थे कि ऐसी दशा में अपना आनंद स्वभाव की भावना से जहां से यौवन अवस्था महान तलाव पाठ है ना द्रग यौवन रूपी मोटो तलाव है बुद्धवानु। समझ में आया? शरीर ने यौवन अवस्था, शरीर की पुष्टि, इंद्रियों की पुष्टि, उसमें वृद्धि होकर यह आसक्त है वो यौवन वही में अपना आनंद से भरा तालाब समुद्र सम्यक संज्ञान चारित्र रूपी रतन से भरा हुआ जहाज उससे यौवन वही का तालाब तिर जाते हैं। समझ में आया? यौवन अवस्था में शरीर पुष्ट हो, इंद्रियों पुष्ट हो, वृद्धि हो एनी घणी एनी आई बात करते हैं। भगवान ने यौवन अवस्था आत्मा ने परमानंद स्वभाव में लीन होना ये आत्मा की यौवन अवस्था है। समझ में आया? तो माटी की अवस्था है, जड़ की। उससे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को तीर तक जाते हैं, वही सत्पुरुष है। वही धन्य है। यह साना जानना बहुत विस्तार से क्या लाभ है ना? धन्य सत्पुरुषा इति तात्पर्य। सम्यक दर्शन ज्ञान, अपना स्वभाव पूर्णानंद, उसकी प्रतीति, उसका संवेदन ज्ञान और उसमें आनंद में लीनता रूपी चारित्र, उससे यौवन अवस्था द्रोण तालाब में तीर जाते हैं। ये सत्पुरुष है, ये धन्य है, ये मोक्षगामी आत्मा है। પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં, રસમાં આસક્તિની ગતિ
ये 4 गति में रखने का कारण है। हाँ, क्योंकि कि सुख अपने में है, ये छोड़कर विषयों में सुख है, मिठास है, ऐसी मानता मिथ्या दृष्टि के है। हाँ, તેથી કયું ને અંદર મિથ્યા માર્ગ છે, સમજાણું? એ મિથ્યા છે ને અહીંયા 100 રૂપિયા રત્ન उसमें प्रवेश रहित जो सम्यक दर्शन 4 करोड़ रुपये उसमें जो घुस जाते हैं अंदर में। हाँ हाँ हाँ, ये मिथ्या मार्ग है, एम कहते हैं। हाँ, पहला આવી છે, પહેલામાં આવી છે। હા છે ને, પહેલા આવી છે, 16માં આવી છે, 16માં આવી છે। ये मिथ्या मार्ग रोच माना। हाँ, रुचे से रोचवा ऊपर है बात। विषय आसक्ति तो ज्ञानी को भी होती है, पर आसक्ति में रस नहीं, रुचि नहीं, सुख बुद्धि नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया? ये सुख बुद्धि मानने वाला मिथ्या मार्ग में रस लेते हैं इनके। हाँ, ये 4 गति में रुलने का पंथ, उसका रस लेते हैं। हाँ हाँ, भगवान आत्मा आनंद स्वरूप, उसकी रुचि ज्ञान में रमणता का अभाव में हम रमणता करते हैं। क्या दिशा फरी गई है કે છે, विषय कषाय का रस जिसको उड़ी गया, इसकी दिशा स्व ऊपर जाती, दिशा फिर गई है। हाँ, क्या किया? विषय 5 इंद्रिय विषय न रस जिसको उड़ गया है, उसको आत्मा का आनंद का रस में रुचि है, तो बाहर की उसको रुचि होती। हाँ, मिथ्या मार्ग था। एक यौवन द्रोह एम लिखा है पाठ में, पाठ है ना, दहमी, वो दम दहमी, 3 पद, मूल पाठ। यौवन वती द्रोह, बड़ा तलाव। हाँ 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 हाँ, नहीं तीर जाते हैं। अज्ञानी 5 इंद्रिय विषय ना रस में उठ जाते हैं। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? ये 70 हुआ, 118। आगे मोक्ष का कारण वैराग को दृढ़ करते हैं। मोखो जी सही साइयो जनवरे छंडी विरजो। भीख भोरा जीव तुम करी न अपो कजू। भाषा सादी पर मार चंद क्या कहते हैं? देखो, जिनेश्वर देव ने अनेक प्रकार का राज का वैभव छोड़कर मोक्ष को ही साधन किया, परंतु ये जीव भिक्षा से भोजन करने वाला तुम भिखारी जैसा है। तुमको गृहस्थाश्रम में हो तो भिखारी जैसा है। भिक्षा से भोजन करने वाला। अरे जीवड़ा, अपना आत्मा का कल्याण भी नहीं करते तुम, है ने? જેણે મોટા ચક્રવર્તી રાજ છોડી દીધા એક ક્ષણ में,
96,000 इससे 14,000 देव सेवा करने वाला हमारा आनंद का रस में हम तो वन में चाली जाते हैं। जिसका इंद्र वो सेवक एवं तीर्थंकरो पण राज ने छोड़ी ने मोक्ष का साधन करते हैं। अरे जीव तुम भिखारी जैसा तेरा आत्मा का कार्य करने में नहीं चाहते तेरे है ना। भीख भरोड़ा भिक्षा से भोजन करने वाला है। 5-25 लाख रुपया ये बता भिक्षा से भोजन करना भिखारा है। वो तो राज चक्रवर्ती નું રાજ કે ને કે હા હે મોટા નથી એમાં છોડી દે છે એમાં કેવું છે। इतनी बड़ी संपदा 6 खंड एक क्षण में बलखा छोड़ दे छोड़ी दे। वैराग डट करा था। तेरे तो क्या चीज है तेरी पास। समझ आया। चक्रवर्ती तीर्थंकर 117 धर्मनाथ ने कुंभनाथ 1569 शांतिनाथ कुंभनाथ 117 चक्रवर्ती तीर्थंकर ने कामदेव 3 पदवी एना जेवुं रूप नहीं अढ़ी आना व्रत क्षेत्र में। अरे ये तो जड़नी चीज है। यौवन अवस्था में त्याग करके अपना स्वरूप का कार्य किया राज छोड़ के। भिखारी तुम तो भिक्षा भोजन करने वाला है भिखारी जैसा। तेरे आत्मा का कार्य करने में तेरे प्रमाद है। अपा आत्मा नु कार्य क्यों नहीं करते हैं क्या देखा ना। जीव तुम करी ना अपू कजू जीव तुम पोता अपना कार्य नहीं करते हैं। समझ में आया है। अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं करते हैं। मोक्ष की अवस्था नहीं व्याख्या करते हैं। समस्त कर्मवाल कलंक से रहित मोक्ष थयो ने जिनवर मोक्ष ने पाम्या एम कह्यो ने। ये चक्रवर्ती आदि राज छोड़कर मोक्ष पाया। तो मोक्ष कैसा है। समस्त कर्मवाल कलंक से रहित जो आत्मा उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान स्वाभाविक गुणों एटली पर्याय निर्मल एनु स्थान अने संसार अवस्था से अनवस्था का होना पहला सीखिया। समस्त कर्म कलंक से रहित अपना शुद्ध स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान और संसार अवस्था से अनवस्था होना। संसार विकारी अवस्था से अन्य निर्विकारी अवस्था होना यह मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष ने व्याख्या करी है श्रीमद महाराज। मोक्ष कयो शुद्धता ते पामे ते पंथ। मोक्ष कयो निज शुद्धता आत्मा की पूर्ण पवित्रता थी मोक्ष। अथवा संसार अवस्था चरित कीधु ने मोक्ष है। मोक्ष में तो अभाव हुआ ने दुख का सर्वथा अभाव और आनंद की पूर्ण अवस्था की प्राप्ति। समझ में आया। मोक्ष है ना तो मोक्ष शब्द में हम मुकाना ऐसा अर्थ है कि किससे मुकाना दुख से। दुख से मुकाना प्राप्ति क्या हुई। सर्वस्व कर्म रहित आत्मा की स्वाभाविक दिशा पूर्ण है प्राप्त हुई। आत्मा का लाभ हुआ।
निम्सर में शास्त्र। समझ में आया? आत्मा का लाभ हुआ, पूर्ण आत्मा की पर्याय का लाभ हुआ, ये मोक्ष है। हाँ, निम्सर में पहले क्या समाता है। उसी मोक्ष को वितराग देव ने राज विभूति छोड़कर सिद्ध किया। हाँ हाँ, राज के 7 अंग है, पाठ है ना अंदर, सप्तांग है संस्कृत में है। राजा, मंत्री, सेना वगैरह ये जहां पूर्ण हो वह उत्कृष्ट राज कहलाता है। यह राज तीर्थंग देव का है। हाँ हाँ हाँ, उसको छोड़ने में तीर्थंकर देरी नहीं करते। ऐसी विभूति तीर्थंकर देव को होती है। समझ में आया? हाँ हाँ, उसको छोड़ने में तीर्थंकर देरी नहीं करते हैं, वार नहीं लगाते हैं। हाँ 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 हाँ, लेकिन तुम निर्धन होकर नहीं, हम कैसे भिक्षा भोजन और ठीक है, तुम तो निर्धन है, तेरे में है क्या तेरे पास? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? आत्मकल्याण नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, तेरी पास है क्या दूध में 2-5 लाख की बड़ी दूध की है क्या? तू तो निर्धन है। हाँ हाँ हाँ, तीर्थंकर त्रिलोकनाथ जैने 100,000 देव सेवा करे। हाँ हाँ, चक्रवर्ती पद। हाँ हाँ, ये राज विभूति नो पार नहीं। 96 करोड़ फायदो, 96 करोड़ गांव, 48,000 पातन, 72,000 नगर। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? અત્યારે ચીન મોટો કહેવાય છે ને દેશમાં, દેશમાં 90 કરોડની વસ્તીમાં મોટું કહેવાય છે। સત્તામાં રૂસિયા અને અમેરિકા, સત્તા વસ્તીમાં છે। આ તો મોટી વસ્તી સમજે છે। હા, 96 કરોડ તો ગામ, 96 કરોડ ગામ। हाँ हाँ, तारे तो एक गाम नहीं, निर्धन है, भिखारी। आचार आलू उमंबो आपे सुनवाय। हाँ हाँ हाँ, जेना वैभव नु पाप है नहीं, मोखुवी साहिब जनवरी ठंडी बहु व्यू है ने, अनेक प्रकार राज नो वैभव, बहुविधम राजम। हाँ हाँ हाँ, वैभव भगवान आत्मा का तो ત્યાં प्रकट किया नहीं। धूड़ना वैभव में रस लेने जिंदगी नकामी गाड़ी। हाँ हाँ, आचार होया कर बताता। लेकिन तू निर्धन होकर आत्मकल्याण नहीं करता। हाँ हाँ, तो माया जाल को छोड़कर महान पुरुषों की तरह आत्मकार्य कर। हाँ हाँ, महापुरुषों तीर्थंकर उठया ऐसा तुम आत्मकार्य कर। हाँ हाँ, आत्मकार्य करने में तो फर्क है। भगवान ने आत्मकार्य विभूति छोड़कर किया, तुम नो पण तुम आत्मकार्य में फर्क है। आत्मकर्मा हीना है, तुम ऐसा है नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया? महान पुरुषों ने मायाजाल को छोड़कर महान पुरुष की तरह आत्मकार्य कर। हम महापुरुषों ने भेदा की भावना के बल से साथी लीधु છે નિશ્ચિત વ્યવહાર બે કથન શૈલીમાં એ સાથી બે આવે
અભેદ રત્નત્ર અને ભેદ રત્ન. ભેદ રત્નત્ર હે તો વિકલ્પ, પણ બેયની આરાધના કરી. સમજમાં આયા? मोक्ष मार्ग है तो एक ही, पर लो मार्ग की कथन शैली है. एम अभेद रत्न तो आराधक है, पर कथन में अभेद रत्न पण साथे आते हैं. हाँ हाँ, समझ में आया? भेदा भेद रत्न की भावना अंतर में स्वरूप में एकाग्रता, राग रहित तद्दन अभेद रत्न त्रयी ये निश्चय, અને અશુભ રાગ રહિત જે શુભ રાગમાં એકાગ્રતા, એ વ્યવહાર. સમજ में आया? यही बात है. निस्वरूप को जानकर विनाशी राग छोड़ा, अविनाशी राग लिया. अविनाशी विभूति 90,000 स्त्री चक्रवर्ती पद बलखो छोड़ दिया. शांतिनाथ कुंदनाथ हरनाथ. हाँ हाँ हाँ, પદમ એ પુરાણમાં આવે છે. શાંતિનાથ પુરાણ દીક્ષિત થાય છે. ભગવાન જયારે શાંતિનાથ તીર્થંકર ચક્રવર્તીને બળદેવ સુંદર રૂપ એના જેવું કલ્પમાં નહીં. સ્ત્રીઓ ઝંટિયા તાણે છે. अरे रे प्रभु तुम्हें क्या, अरे तुम्हें क्या, तुम्हारे માટે मैं રહ્યા था, तुम्हारा आकर्षण ने मैं मेरे तो राग था तो मैं रहा था, मेरा राग मर गया है. राग मेरा मर गया है, जीव तो नहीं होगा. हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा कारण में नहीं रहा था, मेरे राग के कारण में रहा था. તમારું આકર્ષણ મને હો હવે એ હે નહીં. બહુ આવે છે પુરાણમાં. દીક્ષા લે છે એકદમ, એને કઈ શ્વેતાંબરની જેમ નથી કે 12 મહિના સુધી દાન આપે. વર્ષી શું કહેવાય, વર્ષી દાન એમ નથી. તો એકદમ વૈરાગ છે. રાણીઓ એકદમ. હા હા હા, ભરતુરીનું કયું નહોતું હમણાં? ભરતુરી નાટકમાં આવે છે. ભરતુરી જયારે પિંગળાને એને ખબર પડે છે, અરે હું અધિપતિ છે, વિક્રમનો ભાઈ, અને હું ભરતુરી 92 લાખ માળવાનો અધિપતિ. નાટકમાં આવે છે, બધું જોયું છે ને બધું. હા 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 હા, એની સ્ત્રી આ અશ્વપાલને હરે અરે રે આ સંસાર દેખા નહીં કુછ સાર જગત મેં, દેખા નહીં કુછ સાર, એમ બોલે ભાઈ નાટકમાં ભરતુરી. અરે રાણી મારી પ્યારી પિંગળા, અશોક શું યાર, અરે રે આ શું થયું, ક્યાં વૈરાગની છે ને વાત. એ વૈરાગની વાત દ્રષ્ટિની ખબર ન મળે તો. હા હા હા, દીક્ષિત થાય છે. એના ગુરુ કહે છે એ પિંગળા પાસેથી આ લઈ આવે પછી આવો અમારી સાથે. જાય છે. ભિક્ષા દેને મયા પિંગળા, ઓલી પિંગળા શોકમાં છે. અપમાન થઈ ગયું, હલી નીકળે છે, બહાર વાત પડી ગઈ, શોકમાં હતી, કઈ રાંધ્યું નહોતું. જાય છે યોગીરાજ, ભિક્ષા દેને મયા પિંગળા, અરે માં રાજન માતા ન કહો, માં મેરી તો 92 લાખનું અધિપતિ એ જોગીઓની હારે હાલી નીકળે છે. હા હા હા, દ્રષ્ટિ નહીં, તત્વની વાત નહીં, તો બહાર વૈરાગ છે. હા હા હા, માતા અને ભિક્ષા દે.
મારી જમાત ચાલી જાય છે, હું ખડ્યો નહીં રહી શકું. હા હા હા, એ લોકો વૈરાગના નાટક હતા ભાઈ સમય પેલા. હા, અત્યારે તો કાળા કેર થઈ ગયા બીજી ફિલ્મ ને. હા હા હા, ભિક્ષા દેને મય આપી ત્યારે પંગલા કે છે, શિરે ભોજ બનાવું ક્ષણ એકમાં, જમતા જાઓ જોગીરાજજી. મારી પાસે અત્યારે કાંઈ નથી, હું એક દૂધનું ખીર બનાવી દઉં હમણાં જર, બીજું તો તમે ખરા નહીં રહી શકો. ખીર રે બનાવું ક્ષણ એકમાં, જમતા જાઓ યોગીરાજજી. માતા અમે ક્ષણમાં નહીં ખરા રહ્યા. હા હા હા, ધનભાઈ એ વખતે નાટક જોયા એ વખતે આમ ધૂણ ચડી જતી. હે અને પેલે કેવી કહેવાય મીરાબાઈ એ વખતે નાની ઉંમરની ત્યારથી દેખેલા નાટક જોવા જતા ને, વૈરાગી જોવા જતા. અને પાછા એની ચોપડી હતી હાથમાં જતા. ચોપડી હોય ને, લાવો ભાઈ તમારે બારાના જે લેતા હોય, ટિકિટના બારાના ચોપડીના બારાના, તમને ખબર તો પડે ક્યાં બોલતે તો. હા હા હા, મીરાબાઈ પણ એમ કે છો. હા હા બરાબર. એવું બેટા એમ લોકોને વૈરાગ કઈ દાસ થાય એવી કઈ ચીજ હોય ને. દ્રષ્ટિનો વિષય તો સર્વજ્ઞ સિવાય ક્યાં એ નહીં. समझ में आया? सर्वज्ञ ज्ञान आत्मा का होता है, तो ज्ञान साथ ही वैराग होता है. ये वैराग से निमित्त है. निजा अधिकम आया ना ज्ञान वैराग शक्ति. अस्थि नास्तिक क्या है कि अस्थि का पान हुआ है तो राग से नास्तिक का वैराग हो गया. समझ में आया? एक ही लाओ वैराग वैराग निकल. पूर्णानंद नो नाद जहाँ प्रतीत में अनुभव में आया तो उसका ना ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हुआ तो पर से हट गया, राग से हट गया तो वैराग हुआ. ऐसी दो शक्ति ज्ञानी की निरंतर होती है. समझ में आया? निद्रा अधिकर्म आया ना, तीजी चौथी का था. 93 कर्म निद्रा, 94 અશુદ્ધ નિદ્રા, ભાવ નિદ્રા, પછી વૈરાગ ને જ્ઞાન શક્તિની ગાથા આવે છે. છે ને? હા હા, એ વાતો આવી તો ક્યાંય છે ને, પણ એ લોકોમાં વૈરાગની વાતો. હા હા હા, એ કે છે પ્રભુ ત્રણલોકનો નાથ, જેને વૈભવનો પાર નહીં, એ બળખાની જેમ છોડીને ચાલી નીકળ્યા. પ્રભુ તને નિર્ધન. હા હા હા, પાઠમાં તો એ છે ભિક્ષા પૂજક, ભિક્ષા ભરોડા, ભિક્ષાથી અનાજ લેનાર સાધારણ નિર્ધન પ્રાણી તું. હા હા હા, तेरे आत्मा का कार्य करना नहीं सोचते. हाँ 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 हाँ, आत्मा का कार्य कर. हाँ हाँ हाँ, जैने अपना आत्मा का आनंद की भावना के बल से निस्वरूप को जानकर, जो निस्वरूप जाना कैसे ये भी साथ में लिया है. भेदाभेद भावना के बल से निस्वरूप को जानकर आप जानने में आया, एकला ज्ञान किया शास्त्र, ऐसा नहीं. हाँ 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 हाँ, अंतर में भगवान आत्मा की एकाग्रता रूपी अभेद रत्न रही, विकल्प है व्यवहार, उससे की भावना से निस्वरूप को जानकर व्यवहार नहीं कर सकती. हमने व्यवहार नहीं. मोक्ष मार्ग બે પ્રકાર કહેવાય છે ને, એ અપેક્ષા બે રસ નાખ્યું છે. એ અપેક્ષા માર્ગ તો એક એ એમ આ કથન શૈલી આવે, એ પુરુષાર્થ સિદ્ધિમાં એમ આવ્યા છે. મૂળ શ્લોકમાં છે, નિશ્ચય વ્યવહારથી મુક્તિ થાય છે એવો પાછો શ્લોક છે. એ આ અપેક્ષા કથન સમજાય છે કાંઈ?
વેદ રત્નત્રયમાં અશુભ ટળે છે, નિશ્ચય રત્નત્રયમાં શુભાશુભમાં બે ટળતે हैं, ये ऑफिशियल है। હા હા ભાઈ આવે છે ને નથી આજ્ઞા ભાઈ હિંમતભાઈ એ હોય છે અશુભ વચનાર્થમ એવો પાઠ છે 85 का टीकाમાં। अशुभ वंचनार्थम अस्थाने राग टालने को शुभ भाव आते हैं। બે બોલશે ને તે ખબર છે ને 85 का બે टीकाમાં। हाँ ये बुद्धिपूर्वक आते हैं ऐसा भी कहने में आता है व्यवहार से, निश्चय से तो यह समय आता है। समझ आया? ये समय का कार्य है। जिसने निश्चय क्रमबद्ध बैठ गई बात, ये क्रमबद्ध का निर्णय द्रव्य के आश्रय से होता है। तो द्रव्य के आश्रय से जब जो समय का सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पत्ति का काल है, वही समय ये समय का राग का उत्पत्ति का काल व्यवहार का है। समझ में आया? કહ્યું ને દ્રવ્ય સંગ્રહ 47 ગાથા દુવ્યંપી મોક્ષ જેવું જાણે પાવણી નિયમ। 47 ગાથા દ્રવ્ય સંગ્રહ દુવ્યંપી મોક્ષ જેવું જાણે પાવણી નિયમ। બે प्रकार को मोक्ष मार्ग ध्यान में नियम थी पामते हैं। समझ में आया क्या? कि जब अपना भगवान आत्मा का झुकाव हुआ अंदर से, वो निश्चय मोक्ष मार्ग अने हजी पूर्ण हुआ नहीं, राग बाकी है, ध्यान में राग भी प्राप्त होता है, हम कहते हैं। समझ में आया? राग बाकी रहा, उसको आरोपित से व्यवहार मार्ग कहा। और निश्चय से तो क्रमबद्ध का निर्णय में तो जो ही समय निश्चय हुआ वही समय राग बाकी है तो राग है, इसलिए उसका ऐसा अर्थ नहीं कि व्यवहार है तो निश्चय हुआ, व्यवहार से निश्चय हुआ, ऐसा ही नहीं। समझ में आया? अपना स्वभाव का आश्रय करके जो दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, वही उसकी उत्पत्ति का मोक्ष मार्ग की परिणति का उत्पत्ति का काल निरीक्षण था। समझ में आया? वही क्षण में राग बाकी रहा, उसको व्यवहार रत्न कहकर कहा है। आओ मार्ग है। हाँ भेदाभेदની વ્યાખ્યા નહીં, ભેદાભેદની ભાવના શું છે ને? ભેદાભેદ રત્ન ત્રય ભાવના એમ છે, એનો અર્થ એ થયો સ્વરૂપનું અભેદપણું થતા નિશ્ચય કહેવાય છે ને। એ તો કાલ કહ્યું નતું કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ને એક એક ને જયારે કહો તો એ સદબોધ વ્યવહાર થયા, પર્યાય છે, અને ત્રણનું એક રૂપ થયું ત્યારે નિશ્ચય થયો। એ પણ પર્યાય છે તો એનો અભેદ થયો નિશ્ચય કયો। ખરેખર તો દ્રવ્ય નિશ્ચય નહીં, પર્યાય અભેદ થઈ એ પણ વ્યવહાર છે। હા 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 કેવી શૈલી છે જો। શું કહ્યું? આ બે ઉપરની વાત આલે છે। भेदाभेद रत्नत्रय ની भावना यहाँ कहा तो भेद रत्नत्रय में तो विकल्प है, राग है। समझ में आया? पर ये साथ में आते हैं तो उसको भेदाभेद रत्नत्रय की भावना कहने में आता है। समझ में आया? और उसमें तो ये सिद्धांत कि जो अत्यारे ऐसे कहते हैं ना कि व्यवहार से निश्चय होता है, तो ये बात उठी जाती है।
जब अपना भेद रत्न त्रय का काल में जયારે निश्चय परिणति षटकारक से उत्पन्न होती है, वही समय राग बाकी रहा, वो भी षटकारक से परिणत राग। एक पर्याय में दो भाग षटकारक से परिणत होता है। सुन रहे? ओम से बापू महाराज क्या किया फिर? हाँ, ये समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति उत्पन्न होने का काल है, निज क्षण है, वो समय उत्पन्न होता है। હવે वही समय राग बाकी है, वो भी उस क्षण उत्पन्न होने का काल है। तो एक समय में पर्याय एक અને भाग दो, एक पर्याय स्वनाश्रय जो उत्पन्न हुई है, एक तो निश्चय कहते हैं, करने आश्रय उत्पन्न हुई व्यवहार कहते हैं। समझ में आया? तो અહીં ભેદા બે રત્નોનું સાથે લઈને આરાધના કહેવાય ભાવના। ये आराधना तो अभेदनी है, अभेद पर्याय है, इन्हें निश्चय कहा। वो तो भेद से छूटने की अपेक्षा है, भेद को निश्चय कहा है, पर अभेद रत्न की परिणति पर्याय है। ये द्रव्य की अपेक्षा से तो ये पर्याय भी व्यवहार है। परमात्मा चरी कमाई निश्चय ते द्रव्य है, मोक्ष मार्ग जो साधना ये व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग साधना वही व्यवहार है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? आई बापू बापू वितराग नो मार्ग है। हाँ हाँ हाँ, इतनी अपेक्षाओं पड़े છે। ये बधी ज्ञाननी बहुलता है, ज्ञाननी विशालता है। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं भेदाभेद में आयु एम ख्याल, भेदाभेद रत्न की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर, हाँ हाँ हाँ, विनाशी के राज छोड़ा, अविनाशी राज के लिए उद्यमी हुई। हाँ हाँ हाँ, निराधन भगवान आत्मा, निराधन पूर्णानंद का लक्ष्मी भंडार भगवान। हाँ हाँ, ये आयु नाम आयु बोला मैंने, शुद्धात्मा रूपी नहीं, सम्यक ज्ञानचार्य रूपी अमूलक रतन पर्याय नहीं दी तुम 17 आयु सम्यक दर्शन चारित रूपी अमूलक रतन से भरा निःशुद्धात्मा भावना रूपी जात पर्याय को। हाँ हाँ हाँ, उससे यौवन ऐसा महान तालाब तिर जाते हैं। भेद रत्न થી તળે તરે છે, પણ સાથી ભેદ રત્ન છે એનો વ્યવહાર સાથે જ્ઞાન કરેલું છે। हाँ हाँ, अविनाशी राज के लिए उद्यमी हुई। यहाँ पर ऐसा व्याख्यान समझकर देखो, ऐसा व्याख्यान समझकर बाह्यांतर परिकर का त्याग करना मुनिपणानी विशेष दिशा देता है। बाह्य में दसरा आदि का, अंदर में राग का त्याग, बाह्य अभ्यंतर परिकर का त्याग करना, ये तो नास्ती से बात किया। अस्थि क्या? वितराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर, हाँ हाँ हाँ, मुनिपणा। बापू मुनिपण अलौकिक बात है भाई।
આ તો વ્યવહારની ક્રિયાઓ છે પંચમહાવૃતની, એ કઈ વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. સમજમાં આયા? અલિંગણમાં ક્યાં હૈ? યતિનો બાય વ્યવહાર એ આત્મામાં હે નહીં. બોલો ભેદ કીધો પણ આત્મા સમજમાં આયા? હા. સત્તરમાં બોલશે, 20 બોલશે ને 20, 17માં બોલશે. યતિનો બાય વ્યવહાર એટલે પંચમહાવૃત આદિનો વિકલ્પી બાય વ્યવહાર છે. ये अलिंग ग्रहण उससे आत्मा पकड़ने में नहीं आता, ऐसा लिंग उसमें है ही नहीं. हाँ, समझ में आया? यतिनी बाह्य क्रिया का जिसमें अभाव है ऐसा भगवान अलिंग ग्रहण कहने में आता है. હવે यहाँ कहते हैं कि जी यतिनी बाह्य क्रिया है उसमें अभाव है, वो बाह्य क्रिया से निश्चय प्राप्त होता है, ऐसा कहाँ से आया? समझ में आया? महाराज भाई बहुत जणों લોકો આગમના અર્થને સમજે નહીં, अपनी दृष्टि से આગમ વાંચે, સમજ में आया, અને સત્ય વાતને ઉડાડી દે. બાહ્યંતર પરિગ્રહ का त्याग करना. અને વિતરાગ નિરુક્ત સમાધિમાં ઠરકર दुर्धर तप करना. એટલે मुनि પણ આવો તપ શબ્દ दीक्षा कल्याणी का तप कल्याणी कहते हैं ना, तप कल्याणी कहते हैं. वितराग निर्विकल्प शांति में ठहरकर दुर्धर तप करना. अलौकिक रीति उग्रता पुरुषार्थ से लीन होना. चारित्र में उग्र पुरुषार्थ हो तप. चारित्र में उग्र पुरुषार्थ हो तप. चारित्र है उसको उग्र तप होता है. तपंती इति तप, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद तपे. शुभ है, सुंदर ऊप. सोना में जब गेरू लगते हैं ऊप होते हैं, ऐसे भगवान आनंद की ऊप, आनंद का ऊप चढ़ते है उस अंदर में. अरे आई बात मुझे समझ में आया? उसका नाम भगवान तप कहते हैं. क्या पंडित जी? प्रतपन तप. स्वरूप में विश्रांति, निस्तरंग विकल्प का तन नहीं, उसमें तपना, ये तप है. लोग बता अप्पा करे ना करे ना अप्पा के धूड़े नहीं क्या. यह सारा हुआ. उसमें से करना अंदर में ध्यान में उसका नाम सारा है. शास्त्र एम कहता 118 ये બધા ટીકા આખી ટીકા લખી દીધી. એ રીતે ગાથા 117 તથા 118 નો વિસ્તાર પૂરો થયો. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય છે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે
ते